Good morning everyone and welcome to the class. Today we will be doing the chapter What is Government? In the previous class we have just started the chapter and we have discussed about the government. As I told you, the government is just like our parents. The role played by our parents in the family, the same role is played by the government in a country. Okay, so what we find that the government is there to take all the decisions, where to construct a road, where to build a school, and how to if the prices of essential commodities goes high, then it is government who is under the pressure to reduce the prices. So everything is done by the government. All the major decisions are taken by the government, and then these decisions are also implemented by the government. Okay, and now we see that the government does other important things as well, like we have a boundary, and outside this boundary our neighboring countries are there, like in the west it's Pakistan, in the north it's Nepal, China, Bhutan, and in the eastern side it's Bangladesh, in the south it's Sri Lanka. So these different countries are there which are our neighbors. So there is a need to protect the boundary of our country. There can be attack from any country, and there can be this we can say there can be threat to our territorial integrity, है ना. हमारी कंट्री पे कोई भी अटैक कर सकता है, हमारे कंट्री के किसी भी टेरिटरी को कोई अपना कह के क्लेम कर सकता है. तो ये जो चीज़ें हैं इसके लिए the government is responsible. The government is responsible to protect the boundaries of the country, and not only this, it is also responsible for maintaining peaceful relationship with other countries, है ना. ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ हम पीसफुल रिलेशन मेंटेन करके रहें. एंड वी हैव ऑल्सो सीन दैट it is also the responsibility of the government to see that all the needs of all the basic needs of the citizens are getting fulfilled or not. If they are able to get the basic necessities of their life or not. If not, then it is the responsibility of the government to provide them with all these basic necessities. So this is the social responsibility of the government. It is the responsibility of the government to bring social justice, to help the poor people of the country. And not only this, the government is also responsible to take measures in case of natural disasters, like if tsunami is there, or if flood or earthquake is there, then it is the government that provide aid and assistance to the people who are affected by these natural calamities, So this is also one of the important function. Then we see that if there is any kind of dispute or conflict between people, or between a group of people, between different communities, then also it is the responsibility of the government. If suppose there is conflict between two communities, or if any crime is committed, then we go to police station, and then the FIR is lodged, and then the case goes to the court. So all these courts and polices, they all are part of government, they all are part of government. So in this way we can see that the government does so many variety of things, इतने सारे काम करती हैं. they are uncountable. We cannot count how many works are being done by the government, So government, it is really very difficult to manage all these works. इतने सारे काम को government कैसे करती है, बहुत सारे काम हैं, और इन सबको उसे करना है. तो इसके लिए गवर्नमेंट को ये ज़रूरत पड़ती है कि वो कैसे करे, कैसे उसको मैनेज करे, So in order to manage these works, what is done,
ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, है ना, जिसमें डिफरेंट ऑफिशियल्स होते हैं, लीडर्स होते हैं, और वो उन ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू डिसीजंस लेते हैं और फिर वो डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करने का सिस्टम होता है ना। जैसे कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो कि सभी के लिए होते हैं, द रूल्स विच आर एप्लीकेबल टू ऑल, like suppose there is need to control resources and protect the territory of a country, so that people can feel secure. So government do all these things. Government make efforts to protect the territory of the country. Government make efforts to control the resources of the country, and government do all these on behalf of the people, है ना। पीपल के बिहाफ में सारी जो कंट्री है वो किसको बिलोंग करती है? कंट्री डज नॉट बिलोंग टू द गवर्नमेंट, कंट्री बिलोंग्स टू द पीपल ऑफ द कंट्री, एंड द पीपल हैव गिवन देयर राइट टू द लीडर्स, है ना। द लीडर्स आर रूलिंग ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। जो लीडर्स हैं वो लोगों के बिहाफ में रूल करते हैं, डिसीजंस लेते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, और इस तरह से जो हमारे लीडर्स हैं जिनको हम ही चुनते हैं अंडर अ डेमोक्रेटिक, जो कि आजकल के समय में इसी तरह के रूल्स होते हैं, डेमोक्रेटिक रूल्स ही होते हैं, जिसमें कि पीपल themselves choose their representatives, and these representatives are the leaders of the people. They work on behalf of the people. They take all the decisions, they implement all the decisions on behalf of the people. ठीक है? So we see that there is another thing about the government. जैसे अभी तक हमने ये देखा कि गवर्नमेंट को बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है। इन सारे काम को करने के लिए गवर्नमेंट के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। इन ऑर्गेनाइजेशंस में कौन होते हैं? इन ऑर्गेनाइजेशंस में कुछ ऑफिसर्स होते हैं, कुछ पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, और ये दोनों आपस में मिलजुल कर काम करते हैं। और जो लीडर्स होते हैं उनको वो कौन होते हैं? दे आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। जो लीडर्स होते हैं वो इलेक्शंस के थ्रू, मोस्टली इलेक्शंस के थ्रू ही वो इलेक्ट किए जाते हैं, और जो ऑफिसर्स होते हैं वो टैलेंट के बेसिस पे, मेरिट के बेसिस पे एग्ज़ाम्स वगैरह जो कंडक्ट होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, उसके थ्रू वो आते हैं, और ये दोनों मिल करके हमारी कंट्री का जो गवर्नमेंट का काम है वो चलाते हैं, है ना। जो हमारे लीडर्स होते हैं वो डिसीजंस लेते हैं, जो हमारे ऑफिसर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं ब्यूरोक्रेट्स, वो उन डिसीजंस को इम्प्लीमेंट कराते हैं, ठीक है। तो ये हमने देखा। अब हम देखेंगे लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो होता है वो एक ही सिंगल लेवल पे काम नहीं करता है, बल्कि जो गवर्नमेंट होती है वो डिफरेंट लेवल्स पे काम करती है। व्हाट डज इट मीन? गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स होने से हम क्या मीन करते हैं? ओके, वी सी दैट द गवर्नमेंट हैज़ सो मेनी वर्क्स टू डू। इतने वेराइटी ऑफ काम जो है वो गवर्नमेंट को करने हैं। तो अगर सपोज करो सारे के सारे जो गवर्नमेंट के फंक्शन वो एक ही जगह से हो रहा है, ऑल द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट इज़ डन फ्रॉम अ सिंगल प्लेस। एक ही लेवल पे सारे काम हो रहे हैं, सारे पावर जो हैं वो एक ही जगह पे हैं, वहीं से सारे काम हो रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा? बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। एक तो काम अच्छे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक ही जगह पे, एक ही लेवल पे सारे के सारे काम हो रहे हैं। सपोज़ करो हमारे शहर, हम जहाँ पर रहते हैं, जिस लोकेलिटी में रहते हैं, सपोज़ करो उस लोकेलिटी में रोड जो है वो हमारी टूटी हुई है ना। द रोड इज़ नॉट इन अ गुड कंडीशन एंड वी आर फेसिंग प्रॉब्लम इन आर डे टू डे लाइफ। बहुत गड्ढे हैं, गड्ढों में पानी भरा होता है, हमारे लिए व्हीकल्स को रन करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो वी आर फेसिंग ऑल दीज प्रॉब्लम्स, दीज आर लोकल प्रॉब्लम्स, है ना, जो कि हम अपनी लोकेलिटी में आसपास में फेस कर रहे हैं। अब अगर इस प्रॉब्लम को, हम वाराणसी में हैं, इस प्रॉब्लम को लेकर हमको ये प्रॉब्लम को सॉल्व कराना है, गवर्नमेंट ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। अगर रोड की रिपेयरिंग करानी होगी तो कौन कराएगा? द गवर्नमेंट विल डू। नया रोड बनाना होगा तो हु विल टेक द डिसीजन? द गवर्नमेंट विल टेक द डिसीजन। तो ये सारी चीज़ें कैसे होंगी? इसके लिए गवर्नमेंट को बताना होगा ना कि हमारे लोकेलिटी में ये प्रॉब्लम है। तो अब मान लो, सपोज करो ऑल द फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इज़ डन फ्रॉम वन लेवल ओनली, दैट इज़ द सेंटर, है ना। एक ही जगह से सारा काम हो रहा है, और हमारा जो कैपिटल है वो कहाँ है? इंडिया का, दिल्ली में। अब बनारस की मान लो, सपोज आई एम लिविंग इन लंका,
और लंका के आसपास की जो रोड्स हैं, वो जो मेरी लोकेलिटी के रोड हैं वो अच्छे नहीं है, काफ़ी बुरे कंडीशन में है। अब इस लंका में जो रोड की बुरी कंडीशन है, इस कंप्लेंट को लेकर हम दिल्ली पहुंचते हैं और दिल्ली में जो हमारे गवर्नमेंट है, लाइक हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, उनके सामने हम ये प्रॉब्लम रखते हैं कि हमारी ये प्रॉब्लम है, हमारे लोकेलिटी के रोड जो है वो अच्छी कंडीशन में नहीं है। तो व्हाट विल बी द प्राइम मिनिस्टर एबल टू डू? अब वो दिल्ली से बैठ करके हमारे रोड को सही कराना क्या है, ये बहुत ही मुश्किल काम है। इसमें क्या होगा कि एक तो जो सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट है, जहाँ पर कि सारे पावर कंसंट्रेटेड है, उसको बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा, है ना, बहुत एक्सेस इन्यूमरेबल फंक्शन हो जाएगा और वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगी। ऑब्वियसली अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा काम है, जितनी हमारी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा अगर काम हमें मिलेगा तो हमारे काम की क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। तो सिमिलर थिंग विल हैपन विद द गवर्नमेंट ऑल्सो, है ना। द गवर्नमेंट विल नॉट बी एबल टू डू द वर्क इन एन एफिशिएंट मैनर, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा, कॉमन पीपल दे विल फेस सो मेनी प्रॉब्लम्स, लाइक हमारे रोड ख़राब है, अगर हमारी लोकेलिटी में पानी नहीं आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है। अब इन सब प्रॉब्लम्स के लिए हमें अगर दिल्ली जाना पड़े और वहाँ जाकर भी कोई सही ढंग का सॉल्यूशन ना हो सके तो फिर कौन इसको इससे परेशानी किसको होगी? कॉमन पीपल, है ना। कॉमन पीपल विल बी in trouble. They will not be able to utilize, they will not be able to live their life in a peaceful manner because of these small problems which are affecting their day to day life. तो तीसरी तरफ एक और चीज़ होगा, अगर पावर सारा का सारा पावर एक जगह पे हम दे रखेंगे तो वहाँ पर पावर का मिसयूज़ होना स्टार्ट हो सकता है ना, क्योंकि पावर ऐसी चीज़ होती है ना, अगर पावर पे कोई सारे पावर एक ही इंसान के हाथ में हो जाए या एक ही लेवल पे हो जाए तो वो पावर का मिसयूज़ हो सकता है और डेमोक्रेसी जिसको हम कहते हैं वो वहाँ पे अंडरमाइन हो जाएगी। लोगों के हिसाब से काम नहीं होगा, गवर्नमेंट अपने हिसाब से करेगी क्योंकि सारे पावर उसके पास है, उसको किसी की चिंता करने की ज़रूरत नहीं। तो इसीलिए दिस इज़ द रीज़न, दीज आर द रीजन्स जो वी हैव डिस्कस्ड कि काम की एफिशिएंसी बनी रहे, जो कॉमन पीपल है उनको ट्रबल ना हो उनके डे टू डे लाइफ में, पावर का मिसयूज़ ना हो। इसी कारण क्या किया गया है, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट बना दिए हैं, मतलब गवर्नमेंट के जो फंक्शंस है उनको डिफरेंट लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। जैसे हमारे यहाँ अगर हम देखें तो 3 लेवल है गवर्नमेंट का, एक सेंट्रल है, दूसरा स्टेट है और तीसरा लोकल लेवल है, ठीक है। तो सेंट्रल क्या हुआ, जो हमारी दिल्ली की गवर्नमेंट है, दिल्ली में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो कि हम देखते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज़ आवर प्राइम मिनिस्टर, है ना। तो ही इज़ अ पार्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, जो हमारी पार्लियामेंट है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा ये सब नाम आपने सुना होगा, है ना। दिस इज़ द गवर्नमेंट एट द सेंट्रल लेवल, ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ स्टेट्स की बारी आती है। स्टेट्स हमारे यहाँ आज के समय में कितने स्टेट्स हैं इंडिया में? इंडिया में 28 स्टेट्स हैं। तो हर स्टेट में एक स्टेट गवर्नमेंट है, जैसे हमारी यूपी है ना, यूपी में एक स्टेट गवर्नमेंट है, फिर बिहार है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, दीज ऑल आर डिफरेंट स्टेट्स। तो ऐसे हर स्टेट में एक गवर्नमेंट है जिसको हम कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि एक ही जगह पे, जो कि हमारी कैपिटल में, दैट इज़ दिल्ली, ठीक है। और उसके अलावा दिल्ली की एक स्टेट गवर्नमेंट भी है जिसमें कौन है, चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, है ना। तो वो क्या है, वो जो अरविंद केजरीवाल जिस दिल्ली को हेड कर रहे हैं, दैट इज़ अबाउट द स्टेट, है ना। वही दिल्ली जो कि एक अभी पूरा स्टेट नहीं है, स्टेट और यूनियन टेरिटरी के बीच वाली कंडीशन है दिल्ली की। तो वहाँ पर चीफ मिनिस्टर का रूल है, साथ ही साथ यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, ये सारे जो है वो सारे स्टेट्स हैं और इन सब में गवर्नमेंट जो है वो स्टेट लेवल की गवर्नमेंट है। यानी कि यूपी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होगी वो कहाँ पे सॉल्व होगी, वो यूपी गवर्नमेंट सॉल्व करेगी, है ना। और हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने इन दोनों के बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन भी किया है ना, कि कौन से पावर सेंटर के पास होंगे, कौन से पावर स्टेट के पास होंगे, ताकि किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न ना हो, सेंटर और स्टेट के बीच किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट ना हो, है ना। तो इस तरह से डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हैं जिनके बीच में पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है कॉन्स्टिट्यूशन में, ओके। एंड देन वी सी कि एक और लेवल की गवर्नमेंट हमारे यहाँ लोकल लेवल की। आपने बहुत बार, कई बार आप सुनते होंगे ना, पंचायत का इलेक्शन है, प्रधान का इलेक्शन हो रहा है,
वार्ड मेंबर का इलेक्शन हो रहा है, दीज ऑल आर अबाउट द लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट सबसे नीचे लेवल की गवर्नमेंट होती है, जिसका ये मतलब होता है कि जो हमारे लोकल प्रॉब्लम्स हैं, लाइक अभी जो मैंने कहा इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम है, ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, रोड की कंडीशन ख़राब है, तो इन सब के लिए हम कहाँ जाएंगे? इन सब के लिए हम लोकल लेवल की गवर्नमेंट के पास जाएंगे अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाने के लिए, है ना। तो दिस इज़ लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट। तो इस तरह से पावर को जो है वो डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, ताकि हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट के पास कुछ डिफाइंड पावर्स हैं, कुछ डिफाइंड उनके फंक्शंस हैं, कोई भी अपने पावर एंड फंक्शन से आगे नहीं बढ़ेगा। In this way there will not be any kind of misuse of power by the government, and other than this it increases the efficiency of the government, because काम बढ़ गया तो क्या हुआ? ओवरलोडेड कोई भी नहीं हो रहा है गवर्नमेंट का, कोई किसी भी लेवल पे काम बहुत ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा बट डिस्ट्रीब्यूटेड होने के कारण काम की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। और कॉमन पीपल जो होते हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा होता है कि जो भी जिस नेचर का प्रॉब्लम है, अगर कोई हमारा नेशनल ऐसी प्रॉब्लम है जिससे कि पूरा का पूरा कंट्री इन्वॉल्व है, लाइक हम अगर अपनी कंट्री की ये बात करते हैं कि चाइना से इंडिया को क्या थ्रेट है ना, क्या हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है चाइना, तो ये जो चीज़ें हैं वो नेशनल लेवल की गवर्नमेंट इसको डील करती है ना। फिर अगर हम ये देखें कि एजुकेशन की क्या कंडीशन है यूपी स्टेट के अंदर, है ना, यूपी स्टेट में एजुकेशन का क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या उसका सॉल्यूशन है, तो दीज आर द इश्यूज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। और अगर हम देखें कि हम जिस जगह पे रह रहे हैं वहाँ पर हम किन किन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, लाइक इलेक्ट्रिसिटी की क्या प्रॉब्लम है, देन वाटर सप्लाई की क्या प्रॉब्लम, तो दीज कम्स अंडर द लोकल गवर्नमेंट। तो इस तरह से हर प्रॉब्लम का जो नेचर होता है, हर इशू का जो नेचर होता है, उसके अकॉर्डिंगली ही उसका लेवल डिटरमाइंड होता है। ओके, सो हमने लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट देख लिया। हमारी कंट्री में अभी फ़िलहाल ये 3 लेवल है। अगर हम स्टार्टिंग में देखें, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना, तो उस समय बस 2 ही लेवल थे हमारे, सेंट्रल और स्टेट। Only 2 levels were there. Local level was not there in the original constitution. Then in the year 1992 कुछ अमेंडमेंट लाए गए, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाए गए और लोकल गवर्नमेंट को इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दिया गया। तो उसके बाद से हमारे लोकल गवर्नमेंट भी सही ढंग से काम कर रहे हैं। तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। ओके, यू कैन सी इन योर बुक दिस मैप इज गिवन, है ना। इन दिस मैप यू विल सी the political map of India, and you were given this assignment also during your summer vacation to demarcate or identify different states with their capital on the political map of India. So this is very important. You must know the names of all the states of the our country, है ना। So this we have done, and now you must understand one thing, like जैसे हमारी कंट्री है, कंट्री के अंदर क्या है, स्टेट्स हैं, है ना। कंट्री, one country is there, है ना। Now this country, the whole India is divided into 28 states and (28 स्टेट्स हैं हमारे यहाँ और 8 यूटीज़ हैं। यूटी क्या होते हैं? यूनियन टेरिटरी भी जो है वो बहुत छोटे एरियाज़ होते हैं। जैसे स्टेट का जो एरिया होता है ना वो बहुत बड़ा होता है, बट यूटी जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, लेकिन वो इतने भी छोटे नहीं होते हैं कि उनको किसी स्टेट के साथ मिला दिया जाए। अगर मान लो बहुत छोटी टेरिटरीज़ होती तो उनको जो भी उनके नेबरिंग स्टेट्स हैं उनके साथ मिला दिया जाता, लेकिन वो भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो न तो इतने बड़े हैं कि उनको सेपरेट स्टेट बनाया जा सके और न ही इतने छोटे हैं कि किसी नेबरिंग स्टेट में उनको मर्ज किया जा सके, है ना। तो ऐसे कंडीशन में क्या किया गया, एक नया यूनिट बना दिया गया, दैट इज़ नोन एज यूनियन टेरिटरीज। तो अभी आज के करेंटली वी हैव 8 यूनियन टेरिटरीज एंड 28 स्टेट्स। इन सब में हम देखेंगे सेकेंड लेवल की गवर्नमेंट है। और इस स्टेट के अंदर जब हम जिस स्टेट की हम बात कर रहे हैं, इस स्टेट के अंदर क्या है, डिस्ट्रिक्ट्स हैं।
एक स्टेट के अंदर कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, और ये जो हम जिस लोकल लेवल की गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, ये यही डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है ना। तो ये दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट सेंट्रल लेवल इज एट द कंट्री लेवल, है ना, स्टेट गवर्नमेंट इज एट द स्टेट लेवल एंड लोकल गवर्नमेंट इज एट द लेवल ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स एंड देन ब्लॉक्स एंड विलेजेस। डिस्ट्रिक्ट्स के नीचे भी होते हैं, जैसे एक कंट्री को डिफरेंट स्टेट्स में डिवाइड किया गया, एक स्टेट को डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया गया, देन अगेन अ डिस्ट्रिक्ट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ब्लॉक्स एंड देन अगेन अ ब्लॉक इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट विलेजेस। हर विलेज में ग्राम पंचायत होती है, हर ब्लॉक में पंचायत समिति होती है, फिर हर डिस्ट्रिक्ट में जिला परिषद होता है। तो इस तरह से गवर्नमेंट जो है वो फंक्शन करती है। बिल्कुल पावर को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है ताकि काम जो है वो एफिशिएंटली हो सके और पावर का मिसयूज़ भी ना हो सके। ओके, सो कंट्री इज डिवाइडेड इनटू स्टेट्स, स्टेट्स आर डिवाइडेड इनटू district. You will see in your book one map is given in which there are different states are given, different districts are given within a state। एक स्टेट के अंदर जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, ये क्यों इस तरह का डिवीज़न किया जाता है, ताकि हमारा जो काम है एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अच्छे से चलता रहे। नाउ दिस वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। यू मस्ट नो द मीनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। व्हाट डू वी मीन बाय एडमिनिस्ट्रेशन? सो आई एम जस्ट टेलिंग यू द मीनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, because these terms will always come in the discussion and they will cause confusion if you are not knowing the meaning of the word. Okay. एडमिनिस्ट्रेशन से हम क्या मीन करते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन से हम मीन करते हैं टू रन द गवर्नमेंट। जैसे गवर्नमेंट ने डिसीज़न लिया, ठीक है, बट डिसीज़न टू टेक डिसीज़न इज़ नॉट एवरीथिंग। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इम्प्लीमेंट द डिसीज़न। सो एक्चुअल जो फंक्शन होता है गवर्नमेंट का, उसी को हम एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। डिसीज़न लेना एक काम होता है, उस डिसीज़न को इम्प्लीमेंट करना दूसरा काम होता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन इज़ टू रन द गवर्नमेंट, सरकार को चलाना। और यू कैन से टू एग्जीक्यूट और इम्प्लीमेंट। To execute or implement the decisions of government, है ना। गवर्नमेंट ने जो भी डिसीजन लिया है उसको एग्जीक्यूट करना। ओके, तो एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब हुआ एक्चुअली जो गवर्नेंस जो की जा रही है, सरकार चलाने का जो काम हो रहा है, उसी को हम एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। ओके, नाउ वी सी द नेक्स्ट टर्म, the next topic we can say. The topic is law and the laws and the government. So what is this? Laws and the government. The government makes laws. Okay, we know it is one of the most important function of the government to make laws, and when government makes laws, it is obligatory on all of us as citizens and if we are not citizen then also we need to follow the laws if we are living in the country, है ना। अगर हम उस कंट्री में रह रहे हैं, भले ही हम हो सकता है हम सिटीज़न नहीं हो, हम कहीं बाहर से आए हुए टूरिस्ट हो, एजुकेशनल पर्पस से, जॉब के पर्पस से किसी दूसरी कंट्री से आए हुए हैं, लेकिन अगर आप हमारे लैंड पे रह रहे हैं तो आपको इनको फॉलो करना होगा, है ना। तो लॉज जो हैं वो गवर्नमेंट बनाती हैं एंड पीपल जो हैं वो उसको फॉलो करते हैं, सारे लोग, एवरीवन हु लिव्स इन द कंट्री, है ना। तो इस तरह से गवर्नमेंट फंक्शन करती है, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो द लॉज। सपोज गवर्नमेंट लॉ बना रही है
और कोई इसको फॉलो नहीं कर रहा है, तो फिर गवर्नमेंट का कोई काम नहीं रह जाएगा, गवर्नमेंट विल बी मीनिंगलेस, है ना। तो गवर्नमेंट जो है वो लॉ बनाती है और लोग उसको फॉलो करते हैं, और गवर्नमेंट के पास ये पावर होता है, जैसे कि हमने देखा कि डिसीज़न लेने का पावर होता है, उसी तरह से गवर्नमेंट अपने डिसीज़न को एनफोर्स भी करती है। लाइक टू मेक डिसीजंस जो है वो गवर्नमेंट का काम है ना, डिसीजंस लेना। एंड द नेक्स्ट फंक्शन इज टू एनफोर्स। टू एनफोर्स द डिसीजंस, व्हाट डज इट मीन? एनफोर्स द डिसीजंस मतलब जो भी डिसीजन लिया है गवर्नमेंट ने उसको लागू कर देना, उसको इम्प्लीमेंट कर देना, उसको एग्जीक्यूट कर देना, जिसको कि अभी हमने कहा था, आई जस्ट टोल्ड यू, एडमिनिस्ट्रेशन जिसको कहते हैं, है ना। तो गवर्नमेंट के अंदर ही ये सारे काम आ रहे हैं कि लॉ भी बना रही है और लॉ को एनफोर्स भी कर रही है, ठीक है। लाइक सपोज कोई ऐसा लॉ है हमारे कंट्री में, जैसे कि ऑल पर्सन्स ड्राइविंग अ मोटर व्हीकल मस्ट हैव अ लाइसेंस। जो भी मोटर व्हीकल ड्राइव करता है उसके पास लाइसेंस होना चाहिए, है ना। तो ये जो हमारा रूल है कि बिना लाइसेंस के आप ड्राइव नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे में क्या होगा कि सपोज़ करो कोई पकड़ा गया हु इज़ ड्राइविंग विदाउट अ लाइसेंस, है ना, तो क्या होगा? अगर उसको किसी भी तरह से पनिश नहीं किया जाएगा तो क्या होगा? लॉ का इन्फोर्समेंट फिर नहीं होगा। फिर लोगों को लगेगा अच्छा गवर्नमेंट ने जो लॉ बनाया है अगर हम उसको नहीं भी मानते हैं तो हम पे कोई हमको कोई पनिशमेंट नहीं मिलता है ना। इसलिए पनिशमेंट जरूरी होता है। वेन एवर समवन ब्रेक्स द लॉ देयर मस्ट बी सम काइंड ऑफ पनिशमेंट। अगर पनिशमेंट नहीं होगा तो लोग लॉ को नहीं मानेंगे। वी विल नॉट follow the law if there is no provision for punishment. So if the law says that everyone must have driving license if someone is driving the vehicle, then if a person is caught without driving license, then he or she must be punished. कैसे punishment होगा? या तो उनको फाइन लगेगा। फाइन क्या हुआ? एक पैसा अमाउंट उनको देना होगा, या फिर उनको जेल में डाल दिया जाए, है ना। तो ये जो डर है कि अगर हम पकड़े गए बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाते हुए तो हमें जेल में डाल दिया जाएगा या हमसे फाइन ले लिया जाएगा, तो इस डर से क्या होगा, लोग जो हैं वो डिसीजंस को मानेंगे, लोग जो हैं वो लॉज को मानेंगे। अदरवाइज पीपल आर नॉट गोइंग टू फॉलो द लॉज। ओके, अब इसके अलावा हम क्या देखते हैं, गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट को जैसे ये लगता है, सपोज़ ऐसी कंडीशन हो सकती है लाइक कोई एक लॉ बना हुआ है ना। सपोज़ गवर्नमेंट ने लॉ बनाया हुआ है, ठीक है, बट गवर्नमेंट ने जो लॉ बनाया है उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है। तो इस कंडीशन में गवर्नमेंट हैज़ मेड द लॉ, गवर्नमेंट हैज़ फॉर्मुलेटेड द लॉ, and now we see that the law is not being enforced, है ना, जिसके कारण हमको परेशानी हो रही है। अगर वो लॉ इन्फोर्स होता तो हमें आसानी हो जाती, बट द लॉ इज़ नॉट एनफोर्स्ड, दैट इज़ वाई आई एम इन ट्रबल। सपोज़ लॉ क्या है? लॉ जो है वो ये कहता है कि किसी को भी किसी भी जॉब के लिए इस आधार पे, इस बेसिस पे उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा कि उसका रिलीजन क्या है, कास्ट क्या है ना। इस बेसिस पे उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन और कास्ट, एवरीवन विल बी गिवन द सेम अपॉर्चुनिटी फॉर एनी जॉब। नाउ सपोज a person is getting discriminated on the basis of these basis, है ना, लाइक कास्ट के बेसिस पे या रिलीजन के बेसिस पे। सपोज़ करो लोग जो हैं वो उनके साथ वो हो रहा है, उनको नहीं जॉब लेने दिया जा रहा है क्योंकि आप एक पर्टिकुलर कास्ट के हैं, आप एक पर्टिकुलर रिलीजन के हैं। तो ऐसे कंडीशन में जो वो पर्सन है जिसके साथ इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, वो अप्रोच कर सकता है कोर्ट को। वो कोर्ट में जा सकता है और कोर्ट में ये कहेगा कि जो लॉ गवर्नमेंट ने बनाया था कि देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन और कास्ट ऑन गिविंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ जॉब, दिस लॉ इज़ नॉट बीइंग फॉलोड बाय द गवर्नमेंट।
है ना, कोई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको फॉलो नहीं कर रहे, तो उस केस में फिर कोर्ट जो है वो ऑर्डर देता है कि क्या किया जाना चाहिए. सो दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट. वी विल कंटिन्यू with this discussion in the next class.